Okay, so today we are going to discuss rule number 28, 29, and onward some other important rules. So use of each other and one another. Each other is used in reference to two persons. When we are talking about two persons, so we use each other. B, one and other is used in reference to more than two people. When we are talking about more than two people, like three people, four people, or too many people, so then we use one another. Now see, uh, the two brothers disliked each other. Now here we can only use each other. So if we say like this that two brothers disliked one another, so it is wrong. So as we are talking here about two people, so we can only use each other, not one another. The two children quarreled with each other. Here again only each other is correct. If we use the two children quarreled with one another, so it is wrong. Okay, so but when we are talking about more than two people, then we can use one another. Like good boys, do not quarrel with one another. Now here, good boys doesn't refer to two people. It refers to more than two people. Okay. So good boys do not quarrel with one another. Good students do not quarrel with one another. Good players, okay, या फिर all of the members of Pakistani cricket team, they were supporting one another. अब यहाँ पर हम ये नहीं कहेंगे कि all of the players of the Pakistani cricket team were helping each other. No, one another यहाँ पर आएगा. So when we are talking about two people, so we use each other. And when we are talking about more than two people, then we use one another. Rule number 29. Use of either, neither, none, any, and anyone. Use either or neither when referring to one out of two persons. Again, when we are using either or neither, so we are talking about one of two people. But when we are referring to one out of more than two, then we use any, none, or no one. Like either of you two can pay for it. Now here we are talking about two people, and out of two, either refers to one. Either of you two, तुम दोनों में से कोई भी एक can pay for it. Neither of the two brothers has been selected. दोनों भाइयों में से कोई भी जो है वो select नहीं हुआ. So when we are talking about one person or one thing out of two, so we use the word either or neither. But when we are talking about more than two people, so in that case we use any, none, or no one. For example, any one of the employees can claim. Employees में से कोई भी एक इस चीज पर क्लेम कर सकता. Now here employees refers to more than two people. So that's why we have to use anyone. None of the students of this class has passed. इस क्लास में से कोई भी स्टूडेंट पास नहीं हुआ. यहाँ पर none of क्यों यूज हो रहा है? हमने either या neither क्यों नहीं यूज किया? Because here we are talking about more than two people. So if we were talking about two people, one out of two people, then we could have used either or neither. I hope these two rules are clear. Okay, now let's move to rule number 39. As many and as much as. As many as expresses the number, whereas as much expresses quantity. We have to collect as many stamps as possible. अच्छा जी, जहां हम क्वांटिटी की बात करेंगे, नंबर की बात नहीं करेंगे, मिकदार की बात करेंगे.
उस वक्त जो है हम स्टैम्प्स एज मैनी यूज करेंगे। जैसे यू हैव टू कलेक्ट एज मैनी स्टैम्प्स एज पॉसिबल। आपको जितनी भी हो सके उतनी स्टैम्प्स जो है वो पॉसिबल कलेक्ट करनी। बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट नंबर, सो वी यूज, सॉरी ये थोड़ा सा वो हो गया, हाँ, एज मच जो है वो क्वांटिटी के लिए है और एज मैनी जो है वो नंबर के लिए है। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल जैसे दूध है, तो दूध जो है ना उसकी आप नंबर में नहीं, जैसे जैसे भाई मुझे, आप दुकान पे जाते हैं तो आप कहते हैं कि मुझे थोड़ा सा दूध दे दो फॉर एग्जांपल, तो आप चीनी की मिसाल है, जैसे दुकान पर जाएं और आप कहें मुझे 2 चीनी दे दो, 4 चीनी दे दो, तो ये कोई सेंस नहीं बनता, यहाँ पे क्वांटिटी नहीं बन रही। तो आपको कहना पड़ता है मुझे आधा किलो चीनी दे दो, किलो चीनी। तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनके साथ क्वांटिटी आती है, ठीक है, और कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो क्वांटिटी में नहीं हो। जैसे पानी के लिए आप नहीं कह सकते मुझे 1 पानी दे दो, 2 पानी दे दो, हाँ, लेकिन कुछ चीजें होती हैं जिनके साथ नंबर आता है। जैसे मुझे एक लैपटॉप दे दो, एक जो है वो अ, खत दे दो, एक लिफाफा दे दो। तो जहां पर नंबरिंग पॉसिबल होगी, ठीक है, तो वहां पर आएगा एज मैनी, और जहां पे नंबरिंग पॉसिबल नहीं होगी वहां आएगा एज मच। ये जहन में रखें बात। You have to collect as many stamps as possible. And of the 30 students, as many as 10 have failed. अच्छा, यहाँ पर जो दोनों एग्जाम्पल्स हैं वो एज मैनी की हैं, एज मच की नहीं है। अगर यहाँ पर अगर मिल्क होता तो फिर आप कहते जैसे यू कैन टेक एज मच मिल्क एज पॉसिबल, तो मिल्क के साथ आप एज मैनी नहीं लगाते, ठीक है, क्योंकि मिल्क जो है वो नंबर से नहीं काउंट होता, एक दूध या 2 दूध। तो when you are talking about those things which can be expressed in number, which can be meaning expressed in terms of numbers, so you use as many. But when you are talking about that thing which cannot be expressed in numbers, so you use as much. So you have to collect as many stamps as possible. तो यहाँ पर stamps चूंकि नंबर में कलेक्ट हो सकती हैं, तो इसीलिए आप यहाँ पर एज मैनी कह रहे हैं, एज मच नहीं कह रहे। तो अगर यहाँ पे दूध होता तो फिर आप ऐसे नहीं कहते यू हैव टू कलेक्ट एज मैनी मिल्क एज पॉसिबल, नो, एज मच होता है यहाँ पे। वन ऑफ द 30 स्टूडेंट्स एज मैनी एज 10 हैव फेल्ड, तो यहाँ पर आप 10 नंबर आ रहा है तो यहाँ पे आप एज मच नहीं कहेंगे। ओके, इसको एक दफा गौर से देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा। रूल ये है कि जहाँ जिस चीज को नंबर में बयान किया जा सकता है तो उसके लिए एज मैनी आएगा, और जिसको नहीं किया जा सकता तो उसके लिए एज मच यूज होगा। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट, दैट इज 48, नो 46। beside and besides, besides with s means in addition to, beside without s means by the side of. अब like besides we need your support in this venture. Now besides with s at the end, s, so it means in addition to, यानी इलावा। जैसे we need your support in this venture, तो इसका मतलब होगा कि
इसके अलावा हमें आपकी सपोर्ट भी चाहिए। आप हमारे साथ तामुन तो कर रहे हैं और तरीके से, लेकिन इसके अलावा हमें आपकी सपोर्ट भी चाहिए। यानी आप हमें पैसे तो दे रहे हैं, लेकिन आपकी मॉरल सपोर्ट भी चाहिए। I sat besides being fined, he was also jailed. मतलब उसको फाइन के अलावा, जुर्माने के अलावा जेल में भी भेजा गया। नाउ हियर बिसाइड्स मीन इन एडिशन। तो जिस बिसाइड के आखिर में एस आता है, बिसाइड्स हो जाता है, तो उसका मतलब होता है कि अलावा। और जो बगैर एस के सिर्फ बिसाइड होता है, तो उसका मतलब होता है साइड पर, किनारे पर। आई सैट बिसाइड माई टीचर इन द क्लास। मैं अपने टीचर के साइड पर जो है वो क्लास में बैठा। आई लिव बिसाइड द पोस्ट ऑफिस। मैं पोस्ट ऑफिस के साथ रहता हूँ। आई लिव बिसाइड द रिवर। मैं दरिया के किनारे रहता हूँ। तो ये बिसाइड्स और बिसाइड कंफ्यूजिंग हो जाता है, जिसकी वजह से जुमले में एरर हो जाता है। अच्छा जी, ये भी आसान था। 48। Some words like senior, junior, prefer, prior, superior, inferior। जी, besides का मतलब है के अलावा। Superior, inferior, preferable, etc. are followed by to and not then। अच्छा देखें, ये वो वर्ड हैं जिनके बाद अगर आप इन कंपेयर कर रहे हैं तो फिर टू आता है, देन नहीं आता। जैसे ही इज सीनियर टू मी इन सर्विस। वो सर्विस में मुझसे सीनियर है। समझ तो ये आता है कि यहाँ पर आए ही इज सीनियर देन मी, लेकिन नहीं। ये जो खास वर्ड है सीनियर, जूनियर, प्रेफर, प्रायर, सुपीरियर, तो इसके बाद टू आता है, देन नहीं आता। जैसे आप दो लोगों का मुकाबला करवाते हैं तो आप कहते हैं ना ही इज ओल्डर देन मी, वो मुझसे बड़ा है। जब ये वाले वर्ड आ गए नहीं आएगा और देन नहीं आएगा, बल्कि टू आएगा। ही इज सीनियर टू मी। हेल्थ इज मोर प्रेफरेबल टू वेल्थ। हेल्थ इज मोर प्रेफरेबल टू वेल्थ। सेहत जो है वो दौलत के मुकाबले में ज्यादा प्रेफरेबल है। दिस क्लोथ इज इंफीरियर टू दैट क्लोथ। ये कपड़ा जो है उस कपड़े से घटिया है। तो ये वर्ड्स आपके जहन में होने चाहिए जब सीनियर या जूनियर की बात होगी, प्रेफर या प्रायर की बात होगी। तो उस वक्त जब आप कंपैरिजन करेंगे तो बाबू आप टू का वर्ड यूज करेंगे। ओके, 48 के बाद हम चलेंगे 58 की तरफ। अच्छा जी, डेफिनेट आर्टिकल दी is used before superlative as also before only when it is used as an adjective। अच्छा देखें, जब आप सुपरलेटिव फॉर्म यूज करते हैं जैसे गुड, बेटर, बेस्ट, तो ये जो सुपरलेटिव है बेस्ट थर्ड वाली, इससे पहले हमेशा दी आता है। दिस इज द बेस्ट बुक ऑन द सब्जेक्ट। तो बेस्ट सुपरलेटिव की थर्ड फॉर्म है, तो इससे पहले हमेशा दी आएगा। और जब वर्ड ओनली जो है एज एन एडजेक्टिव यूज होगा तो तब भी उससे पहले दी आएगा। दिस इज द ओनली रीजन, दिस इज द बिगेस्ट ब्लंडर यू हैव मेड। तो बहुत से लोग जब सुपरलेटिव डिग्री यूज करते हैं तो उससे पहले दी छोड़ जाते हैं, तो वो नहीं छोड़ना होता, वो लिखना होता है, क्योंकि वो कंपल्सरी है। दिस इज द बिगेस्ट ब्लंडर, दिस इज द बिगेस्ट ब्लंडर, ही इज द स्ट्रॉन्गेस्ट मैन इन द क्लास। ठीक है, दिस इज द ओनली पर्पज ऑफ माई विजिट। तो यहाँ पर ओनली जो है एज एन एडजेक्टिव यूज हो रहा है। जब एज एन एडजेक्टिव यूज होता है तो हमेशा नाउन से पहले आता है, क्योंकि इंग्लिश में एडजेक्टिव्स हमेशा नाउन से पहले आते हैं। जैसे आपने किसी किताब को कहना हो खूबसूरत किताब, तो आप कहते हैं गुड बुक।
अच्छी किताब, गुड बुक। तो इसमें बुक नाउन है और गुड एडजेक्टिव है, और इंग्लिश में एडजेक्टिव हमेशा नाउन से पहले आता है। तो यहाँ पर ओनली नाउन से पहले आ रहा है, तो ये एडजेक्टिव होगा और ये दी के साथ आएगा। दिस इज द ओनली पर्पस। आसान है, देख लीजिएगा, सुपरलेटिव से पहले हमेशा दी आएगा। द बिगेस्ट, द टॉलेस्ट, द लॉन्गेस्ट, इन तमाम से पहले। अच्छा जी, ये रूल नंबर 63 मेरा ख्याल कल कर लेंगे, लंबा हो जाएगा। अभी आपकी क्लास हाँ तो है नहीं वैसे, तो कर लेते हैं। द पास्ट, सॉरी, कहाँ से शुरू होगा? हाँ, the past tense in the principal clause must be followed by a past tense in the subordinate or dependent clause. एक होती है मेन क्लॉज और एक होती है सबऑर्डिनेट क्लॉज, ठीक है। जैसे आई फेल्ट दैट शी वॉज अ लिटिल वरिड, तो आई फेल्ट ये मेन क्लॉज है और दैट के बाद जो है ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है। तो जब मेन क्लॉज में पास्ट टेंस आ जाएगा तो फिर जो उसकी सब ऑर्डिनेट क्लॉज है उसमें भी पास्ट टेंस को आना होगा, उसमें भी पास्ट टेंस यूज करेंगे। जैसे आई फेल्ट शी वाज अ लिटिल वरिड, मैंने महसूस किया कि वो थोड़ी सी परेशान थी। अब अगर आप यहाँ कहते हैं शी इज अ लिटिल वरिड तो ये गलत होगा, क्योंकि मेन क्लॉज जो है वो पास्ट में है, तो उसके बाद आने वाली जो क्लॉज है उसने भी पास्ट में होना है। I forgot that they were coming today. I forgot, ये मेन है क्लॉज, और दैट के बाद जो है ये सबऑर्डिनेट है। तो यहाँ पर अगर आप कहते दैट दे आर कमिंग टुडे तो ये रॉन्ग हो जाता, तो दे वर आएगा। आई सॉ दैट द मशीन हैड स्टॉप्ड, यहाँ पे भी द मशीन हैड स्टॉप्ड पास्ट है। आई फाउंड दैट ही वाज गिल्टी, आई थॉट दैट शी वाज एब्सेंट। इन तमाम में आप देखेंगे कि मेन क्लॉज चूंकि पास्ट में है तो उसकी जो सब ऑर्डिनेट क्लॉज है वो भी पास्ट में होगी, तो यहाँ पर उसको प्रेजेंट में यूज करना गलत होगा। तो आप बाज़ औक़ात इस तरह की गलती कर जाते हैं। हाँ, बाज़ औक़ात ऐसा होगा कि मेन क्लॉज तो पास्ट में होगी लेकिन सब ऑर्डिनेट क्लॉज जो है उसका टेंस मुख्तलिफ होगा, तो उसकी इजाजत खास सूरतों में होती है, कुछ एक्सेप्शंस होती हैं। जैसे अगर सब ऑर्डिनेट क्लॉज में यूनिवर्सल ट्रुथ बयान किया जा रहा है फिर वो प्रेजेंट में होगी। जैसे ही सेड दैट द अर्थ रिवॉल्व्स राउंड द सन, तो यहाँ पर रिवॉल्व्स ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, हालांकि मेन क्लॉज जो है ही सेड वो पास्ट में है, तो इसको भी पास्ट में होना चाहिए था, लेकिन ये प्रेजेंट में है। क्यों? क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। तो जो यूनिवर्सल ट्रुथ होता है उसके लिए फिर आप टेंस नहीं चेंज करते। आई टोल्ड हिम दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, आई टोल्ड हिम पास्ट है, लेकिन चूंकि सबऑर्डिनेट क्लॉज में यूनिवर्सल ट्रुथ बयान हो रहा है तो यहाँ पर वाज नहीं आएगा बल्कि वो आएगा, प्रेजेंट ही आएगा। अच्छा, when the subordinate clause begins with then or as, हाँ, अगर सबऑर्डिनेट क्लॉज का आगाज देन और एस से होता है तो फिर कोई भी टेंस यूज किया जा सकता है। देखें, आई मेट हर मोर फ्रीक्वेंटली देन आई मीट यू, अब यहाँ पे जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है वो देन से शुरू हो रही है, तो इसी वजह से आप जो है वो इसको किसी भी टेंस में ले सकते हैं। अगर देन से शुरू नहीं होती और यूनिवर्सल ट्रुथ भी ना होता तो फिर हम पास्ट टेंस ही यूज करते। आई मेट हर मोर फ्रीक्वेंटली देन आई मीट यू, आई सॉ हर ऑफन देन आई सी यू। अब यहाँ पे देन से शुरू हो रही है तो इसीलिए
जरूरी नहीं कि यहाँ पे पास्ट हो। शी लव्ड यू मोर देन शी लव्स यू मोर देन ही केयर्स फॉर हिज ब्रदर। ओके, तो ठीक हो गया। अब इसमें कुछ सी वाला तो नहीं है भाई? सी की क्लास अब होगी इंशाल्लाह। ये बी के लिए थी क्लास। ओके जी, मैं क्लास एंड कर रहा हूँ इंशाल्लाह फिर